Now, in the last lecture, we have discussed or we have seen that in the internal combustion engine, we are having two types of the engine, or we can divide the engine into two types. The one is the compression ignition, and second one type which may call as spark ignition. Spark ignition. So generally, we know that the spark ignition engine is being used for the gasoline engine, and this compression ignition is being used for the diesel engine. The reason behind is that the gasoline is having higher ignition temperature than diesel, so we need to have a system which can give it higher amount of energy, higher amount of activation energy, basically we can call it, is being required in case of the gasoline engine. And in case of diesel engine, we require the lesser amount of the energy. So as we require higher amount of activation energy for this engine, so we use the spark plug. I will be explaining the principle of the spark plug. Firstly, how does the spark plug work? So in the spark plug, we are having two electrodes. One electrode is this one, and this is generally made from the cobalt or high melting point temperature material. तो ये मटेरियल इलेक्ट्रोड उन मटेरियल का बना होता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, टाइटेनियम, कोबाल्ट उनका बना होता है. And this part is being insulated, or we can say that some material is being put it so that it is being insulated from the surrounding, के surrounding से कोई electricity वगैरह conduct ना हो. And second electrode we are having like this. So generally the gap which is being maintained in between these two electrodes is of the order of 1 mm. ये जो गैप है जनरली 1 mm या उसके आसपास मेंटेन किया जाता है. Now we will be having two poles. One will be the negative pole. I will be making it like the negative pole, and we will be making it like the positive pole, negative and positive pole. अब यहाँ पर सबसे पहले we have to understand the principle of plasma, because the spark plug will be working on the principle of plasma. So what does the plasma do? In the plasma, or we can say that suppose we are having a space where we are having the very high concentration of charge. So to make the high concentration of charge, what we have to do? We have to decrease the area. As the area will decrease, so concentration will increase. So to enhance the charge concentration, or we can say that charge Q divided by area. So when area will be lesser, so concentration will be more. So what we will do? We will decrease the area at some point so that we can increase the concentration of the charge. We will be giving negative charge, which will be at very high concentration. And you have seen that we have given a gap of 1 millimeter. In the 1 millimeter gap, air will be present. So all around here, in the gap of 1 millimeter, air will be present. And again, if I enlarge this view, you can see that here we are having another electrode which will be of positive charge. Now what will happen? As the negative charge concentration is very high, due to this high concentration, the air molecules they will also be charged. So यहाँ पर जो air molecules होंगे, they will also get the charge, and due to the charge, the air molecules will also obtain some charge, or air molecules will be having some charge. So these negatively charged air molecules, they will start traveling from this place to this place. वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स को चार्ज कर दिया गया. नाउ दी चार्ज मॉलिक्यूल्स,
ये जो चार्ज मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है, ये एयर के मॉलिक्यूल्स दे विल बी फीलिंग सम रेसिस्टेंस बाय दी अनदर मॉलिक्यूल। ये एयर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से ट्रेवल करने की कोशिश तो करेंगे बट दे विल बी फीलिंग सम रेसिस्टेंस और सम रेसिस्टेंस विल बी गिवन टू देम बाय दी अनदर मॉलिक्यूल जो कि वहाँ पर प्रेजेंट। तो उस रेसिस्टेंस की वजह से we feel that there is some energy or there is some spark, but basically it is not a simple spark, it is plasma। तो ये जो charged molecules है, ions है, which are traveling from one place to another place, this traveling of ion and they generate some amount of energy due to the resistance offered in their way by the other particles is called as plasma। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्लाज्मा होता है that is somewhat different from the just energy heat generation। In this we are not generating the heat but we are generating the plasma। So to generate the plasma what we require very high voltage। यहाँ पर हमें जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में वोल्टेज देनी पड़ेगी। तो अमाउंट ऑफ वोल्टेज में भी नियरली 6000 वोल्ट। तो ये वोल्टेज होती है वो 6000 वोल्ट तक भी हो सकता है। जबकि आप देखेंगे कि अगर आपने देखा होगा हाई टेंशन जो वायर होती है उनमें जो पोटेंशियल होता है वो 11000 वोल्ट का होता है। तो यहाँ पे हम 6000 वोल्ट तक दे रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हाई वोल्टेज इस पर दिया जा रहा है। एंड दिस हैव टू बी गिवन बाय द बैटरी और मैग्नेटिक सिस्टम। वो हम बाद में करेंगे डिस्कस, क्योंकि यहाँ पर हमारा वो वाला पॉइंट नहीं है। हमारा यहाँ पे मेन पॉइंट क्या था कि इन दी स्पार्क प्लग व्हाट वी विल डू, वी विल जनरेट ए प्लाज्मा और वी कॉल इट एज ए स्पार्क। अब जो स्पार्क है इसके अंदर जो एनर्जी है दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द कि भी हमने यहाँ पर कितना पोटेंशियल दिया है। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा मैं एक बार और स्पार्क प्लग का जो इलेक्ट्रोड है तो बड़ा कर लेता हूँ। इलेक्ट्रोड ऑफ दी स्पार्क प्लग, ये इलेक्ट्रोड जो होता है स्पार्क प्लग का देखेंगे तो आपको लगभग ऐसा सा दिखाई देगा और दूसरा जो इलेक्ट्रोड है वो ऐसा यहाँ पर रहेगा इसके पास। तो अब इसके गैप के अंदर जो हमारे पास मान लीजिए स्पार्क जनरेट हो रहा है वो कितना वाइड है, कि कितना उसके अंदर चौड़ाई है, दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द गैप ऑफ द स्पार्क प्लग। इफ गैप इज मोर, अगर मान लीजिए गैप को आप बढ़ाएंगे, इस गैप को बढ़ाएंगे तो दिस विड्थ विल बी मोर, जो विड्थ है स्पार्क की दैट विल बी मोर। अगर गैप कम होगा तो इसकी स्पार्क की विड्थ भी कम होगा। वन थिंग। सेकंड, अगर आपके पास पोटेंशियल ज्यादा है, इफ दिस पोटेंशियल इज हाई, in that case the energy which is coming here by plasma will also be high। हाई होगी एनर्जी अगर वोल्टेज हाई है। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि इसकी परफॉर्मेंस को, इसकी वर्किंग को कंट्रोल करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, लेकिन क्योंकि हम क्या करते हैं जनरली इन द केस ऑफ स्पार्क इग्निशन इंजन और इन गैसोलीन इंजन वी यूज कार्बोरेटर। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कार्बोरेटर? कार्बोरेटर का फंक्शन है एयर फ्यूल मिक्सिंग। जो कार्बोरेटर है दैट मिक्स द एयर एंड फ्यूल। क्योंकि अब गैसोलीन है दैट इज वेरी वोलेटाइल फ्यूल, यू कैन कन्वर्ट द गैसोलीन इनटू गैसियस फॉर्म वेरी इजीली। गैसोलीन को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान होता है। और तो इसलिए हम क्या करते हैं, एयर और फ्यूल का मिक्सचर पहले ही तैयार कर लेते हैं। तो इससे हमारा वो टाइम बच गया, वो समय बच गया जो कि इंजन में जाने के बाद लगेगा एयर और फ्यूल को मिक्स करने। तो इन गैसोलीन इंजन व्हाट वी डू, वी प्री मिक्स द एयर एंड फ्यूल। जैसे हमने बर्नर की बात की थी, इसमें देखा था कि वी आर हैविंग ए होल इन विच द एयर विल बी एंटरिंग एंड वी विल गेट द प्री मिक्स फ्लेम। So mixture is being pre-mixed so that the time will be avoided. This time will be saved in the cylinder itself। अब सिलेंडर में जाने के बाद उसको मिक्स करने की जरूरत नहीं है, तो पहले ही मिक्स हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर स्पार्क प्लग होगा उसके चारों तरफ सराउंडिंग में हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर होगा जिसके अंदर एयर और फ्यूल मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर आ जाएगा स्पार्क प्लग के चारों तरफ जहाँ पे एयर और फ्यूल जो है मिक्स होके प्रेजेंट है, जो कि मिक्स होके आप यहाँ पर उसको ले। Now we are having the availability of activation energy, we are having the availability of air, we are having the availability of fuel।
Now the condition is very conducive for the chemical reaction. We are having the presence of air, we are having the presence of fuel. So it is easy or it is convenient to start the chemical reaction at this place. So this spark will be giving energy to this air and fuel mixture, and this air and fuel will be reacting. In air only oxygen will be reacting. It is very important point. Please remember, only oxygen will be reacting. अब मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने ऐसा इसलिए कहा कि ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहती है। तो नाइट्रोजन की प्रेजेंस बहुत सारे रोल प्ले करती है। फर्स्टली इट प्लेज द रोल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉक्स, उसको हम पोल्यूशन में डिस्कस करेंगे। प्लस इट लोअर्स द टेम्परेचर। अगर मान लीजिए हमारे पास नाइट्रोजन नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन रहेगी, इन दैट केस वी कैन जनरेट हायर टेम्परेचर इनसाइड द इंजन। तो उसके लिए टर्म होती है दैट इज एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर, एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एडियाबैटिक फ्लेम टेम्परेचर, वो क्या होता है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। नाउ व्हेन द spark has been generated, it will start the chemical reaction between the air and fuel. तो एयर और फ्यूल के बीच में केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगी और केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ पर इस एरिया के अंदर आप देख सकते हैं कि हीट विल बी जनरेटेड, हीट विल बी जनरेटेड। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि जो यहाँ का आसपास का एरिया है, एयर फ्यूल मिक्सचर है, वहाँ पर क्या होगा? सफोकेशन हो जाएगी। सफोकेशन क्यों हो जाएगी? क्योंकि व्हेन वी बर्न अ मीथेन व्हिच इज हाइड्रोकार्बन with the oxygen, it will be giving CO2 plus H2O plus heat. So this CO2 H2O, this will suffocate this area, and a very little presence of the fresh charge will be available. तो fresh charge इसमें available नहीं हो पाएगा। तो fresh charge को यहाँ पर लाने के लिए what we have to do, we have to blow the air. तो हमें क्या करना पड़ेगा? ब्लो करना पड़ेगा एयर को, ब्लो दी एयर। यहाँ पे एयर का सप्लाई शुरू करना पड़ेगा। तो मीनिंग टू से if we are not blowing the air, we are having only laminar flow, then after some time there will be areas which will be highly suffocated inside the internal combustion engine. So what we have to do? We have to generate turbulence. But this turbulence again should be in a very controlled manner. In a very controlled manner. अब यहाँ पे कंट्रोल्ड का मीनिंग क्या है? कंट्रोल्ड का मीनिंग हमारे पास ये है कि जहाँ पर जितनी टर्बुलेंस की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर उतनी ही टर्बुलेंस जनरेट की जाए। जैसे मान लीजिए वी आर हैविंग ए कैंडल और वी आर हैविंग ए सम बर्निंग कोल और समथिंग लाइक दिस। इफ यू गिव सम एयर, कि आप थोड़ी सी इसको फूंक मारते हैं, हवा लगाते हैं, देन इट विल बी ब्राइटन। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट विल बी इंक्रीज। लेकिन अगर ज़्यादा करेंगे देन इट विल एक्सटीन्यूट। तो इसी तरह से अगर इंजन के अंदर भी आपने बहुत ज़्यादा तेज हवा चला दी देन फ्लेम विल क्वेंच और फ्लेम विल बी एक्सटिंग्विश्ड। अगर कम हवा चलाएंगे तो उसके हिसाब से जो हमारा सफोकेशन है दैट विल नॉट बी विल। So what we have to do? We have to generate the turbulence, but this turbulence should be in a controlled manner. So how we can control this? We can control this with the help of the design of engine. And design of engine is not the work of single person. It will be a group task along with some computational tools. So computational tools may be such like CFD, computational fluid dynamics. Computational fluid dynamics. तो CFD या इस तरह के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम करते हैं। तो CFD बेसिकली क्या करेगा? CFD विल डिक्रीज द टाइम ऑफ कंप्यूटेशन।
तो जो कंप्यूटेशन में हमें टाइम लगेगा उसको वो कम कर दे, लेकिन कैलकुलेशन तो जो आपको इनपुट है वो सभी आपको देने पड़े। तो इज देयर एनी डाउट, और इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क एनी टाइम इन बिटवीन द लेक्चर, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। आपने कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप किसी भी पॉइंट पे मुझे रोक के पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं लेक्चर के बाद में उनको डिस्कस करना। So if there is any doubt, you can either write in the chat box or you can unmute yourself. No doubt. Nobody is having any doubt. Okay. Then we can proceed further. Now we come to the case of the CI engine. CI engine में क्या हो रहा है? पाथ इग्निशन का थोड़ा आइडिया ले लिया हमने. Now we come to the compression ignition engine. Compression ignition engine. यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा समझना होगा हमें कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कंप्रेशन इग्निशन इंजन इन कंपैरिजन टू एसआई इंजन. क्योंकि एसआई इंजन के अंदर क्या होता है कि जो फ्यूल है वो ऑलरेडी एयर के साथ मिक्स होके आता है, तो हमारा कंसंट्रेशन वहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सिंग नहीं रह जाता, वहाँ पर एयर और फ्यूल पहले ही मिक्स हो चुका है, वहाँ पर हमारा जो फंक्शन है उसे कंबस्ट करना. लेकिन यहाँ पर हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, पहले फर्स्टली वी हैव टू कंट्रोल द इंजेक्शन and based upon the injection phenomena we will be controlling the combustion inside the engine. तो जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन है उसके अंदर जो कंबस्टन है दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय द फिनोमिना ऑफ इंजेक्शन ऑफ फ्यूल. कल हम कर रहे थे बाद पिंटल एंड पिंटो, तो उसका मैं छोटा सा डायग्राम बना के बताता हूँ. जैसे मान लीजिए हमारे पास दिस इज द इंजेक्टर, इसमें इंजेक्टर है and in this injector we are having the single hole, then it is the pintle injector. Now in the injector suppose I am having multiple holes, say this is the injector, one hole is here, one hole is here and one hole is here. So this type of injector in which we are having the multiple holes, so this injector will be called as pintock. तो पिंटल और पिंटॉक में बस यही फर्क होता है. इन दी पिंटल वी आर हैविंग द सिंगल होल, इन दी पिंटॉक वी आर हैविंग दी मल्टीपल होल. तो इसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता पिंटल पिंटॉक में. मेन चीज़ बस इसमें यही है कि सिंगल होल है देन पिंटल, अगर मल्टीपल होल है देन पिंटॉक. नाउ वी कम टू दी कंबस्टन फिनोमिना ऑफ दी compression ignition engine. So I will not be making many droplets or something like this. I will be making injector and one droplet and we will do our complete analysis on the single droplet. कि हम इसको सिंगल ड्रॉपलेट लेंगे और उसी के ऊपर एनालिसिस करेंगे. तो से व्हाई एम इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द इंजेक्टर इज इंजेक्टिंग द फ्यूल, अगेन द फ्यूल विल बी कमिंग विद सम स्विंग मोशन. और ये मत देखिएगा कि इंजेक्टर का साइज में इतना बड़ा बना रहा हूँ, कितना बड़ा होता है, होल का साइज बहुत छोटा होता है. ये साइज आप मान के चलिए 0.1 या उसके आसपास रहता है. So when fuel will be coming out, it will be converted into drop. So I am considering only a single drop, and this drop is being made from the hydrocarbon, hydrogen and carbon. So now when this drop will be coming inside the chamber, here we are having the compressed air. Compressed air. So compressed air will be at high temperature and pressure. तो क्योंकि एयर कंप्रेस है तो उसका जो टेम्परेचर है
और प्रेशर है वो हाई रहेगा। So now when this droplet will be coming to this place where we are having the high temperature and pressure. So what will happen? The air of high temperature and pressure will be present all around this. तो जैसे ये इसके अंदर आएगा तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर की एयर प्रेजेंट। नाउ दिस हाई टेम्परेचर एयर, this high temperature air, firstly what it will do, it will transfer heat to this droplet. ये हीट ट्रांसफर करेगी, जो हाई टेम्परेचर की एयर है that will do heat transfer, and mostly part of this heat transfer will be controlled by convection. ठीक है, क्योंकि एयर मूव कर रही है और मूव करते करते जो है एयर that is transferring its heat to the droplet, and this heat transfer will be done by the convection heat transfer. convection heat transfer हम पढ़ चुके हैं। तो अब उससे क्या होगा, दिस ड्रॉपलेट जो कि इंजेक्शन से स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई थी, दिस ड्रॉपलेट विल बी कन्वर्टेड इनटू फर्दर ड्रॉपलेट और इट विल बी स्टार्ट इवेपोरेटिंग। तो इसकी वजह से, हीट ट्रांसफर की वजह से, दिस ड्रॉपलेट विल स्टार्ट इवेपोरेट। So we can say that this droplet is evaporating due to the presence of the high temperature, and these evaporation or these evaporated fuel will be mixing with the air molecule. ठीक है, तो ये जो evaporation है, ये जो एयर फ्यूल मिक्सचर है, that will start the, ये बनना शुरू हो जाएगा। तो अब इस काम में आप देख सकते हैं ये सारा काम लगभग मैकेनिकल है, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। तो ये सब काम जो है दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल केम और फिजिकल लैग। फिजिकल लैग, लैग का होता है लैगिंग। लैगिंग मतलब जितना हमने उम्मीद की थी उससे थोड़ा लेट चल रहा है या कितना टाइम लेगा, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल लैग और फिजिकल केम। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जनरली जो हम पढ़ते हैं इंटरनल कंबस्शन इंजन, हम फिजिकल लैग और केमिकल लैग को नहीं समझते, या फिजिकल डिले, डिले बोल सकते हैं इसको, और केमिकल डिले, इनको नहीं समझते, तो हम इंटरनल कंबस्शन इंजन को भी नहीं समझ पाते। इनको समझना जरूरी है कि फिजिकल डिले क्या है। तो फिजिकल डिले ये है कि व्हेन द फ्यूल विल बी इंजेक्टेड ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ द फ्यूल इन द इंटरनल कंबस्शन चैम्बर, there will be some time into which some heat will transferred from the surrounding to that droplet, and that fuel which is further evaporated, that will take some time to mix with the air. तो यहाँ तक की जो फिनोमिना है that is the physical delay. Now there are so many factors which will be controlling the physical delay. Now air and fuel have been mixed and chemical reaction will start. Now even if we are having the presence of oxygen, O2, and presence of fuel, carbohydrate, even then it will take some time to start the chemical reaction due to chemical kinetics. So this is called as the chemical delay. तो फिजिकल डिले क्या है? फिजिकल डिले ये है, एयर आएगा, एयर सराउंडिंग के साथ मिक्स होगा, तो उसमें जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड एज द फिजिकल डिले, and afterwards chemical reaction will be started, and that will also take some time to start the chemical reaction, that is called as chemical delay. So is there any physical significance of these two? कि जो हमने फिजिकल डिले की बात की, केमिकल डिले की बात की, क्या इनका कोई महत्व है, इनकी कोई जरूरत है? तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन के अंदर इनका बहुत ज्यादा महत्व। नाउ व्हाट डू वी वांट, एज आई सेड, इन दी कंप्रेशन इग्निशन इंजन, कि खास तौर पे ध्यान रखिएगा, इन द केस ऑफ कंप्रेशन इग्निशन इंजन वी वांट टू कंट्रोल the ignition by the phenomena of injection। कि हम जो यहाँ पर फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं, that will be the controlling factor which will control the combustion phenomena inside the engine। And you can see that
there are two types of the delay, or there are two types of the phenomena. One is the physical delay and one is the chemical delay. Now suppose that we have injected the fuel at time t0. हमने यहाँ पे फ्यूल का इंजेक्शन कर दिया है. We have started the injection of the fuel at time t is equal to t0. Now suppose physical delay, which I am writing as PD, is 0.02 seconds, and chemical delay is 0.002 seconds. Because generally chemical reaction starts at very fast rate, and physical changes are somewhat slower. So this time is being required, क्योंकि जब तक ये फिजिकल डिले नहीं होगा, जब तक एयर फ्यूल का मिक्सचर नहीं होगा, तब तक केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती. तो इसका मतलब क्या है कि जो फिजिकल डिले है ये जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही केमिकल रिएक्शन देर में स्टार्ट. और क्योंकि केमिकल रिएक्शन अगर मान लीजिए देर से स्टार्ट होगा तो उसे जो टाइम हमने दिया है कि जितना टाइम तक चार्ज इंजन के अंदर रहेगा, तो वो टाइम उतने टाइम तक चार्ज इंजन के अंदर नहीं रह पाएगा, उससे पहले ही हमारा स्टॉप पूरा हो जाएगा. तो what we have to do, we have to precisely control the physical delay and chemical delay. अगर हमने फिजिकल डिले को प्रिसाइजली कंट्रोल नहीं किया, then it will affect the chemical delay or chemical reaction, and if chemical reaction will be delayed, then heat generation pattern will be differentiated or that will also be delayed. तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए हीट ट्रांसफर पैटर्न वेरी कर जाता है, कि हम जो हीट ट्रांसफर करवा रहे हैं या हीट जनरेशन पैटर्न वेरी करता है, तो उससे क्या होगा. तो उससे ये होता है कि जो हमने पिस्टन का डिजाइन किया है, तो पिस्टन के डिजाइन में ये आइडियल है दैट प्रेशर चेंज अबव द पिस्टन, कि जो पिस्टन के ऊपर प्रेशर चेंज हो रहा है दैट शुड बी 2 बार और लेस देन 2 बार पर क्रैंक एंगल, क्रैंक डिग्री. ठीक है, क्रैंक डिग्री. यानी कि आप इसको ऐसा समझ लीजिए अभी प्रेजेंट के लिए, मोडालिटी में जाने की जरूरत नहीं है, कि अगर हम केमिकल रिएक्शन को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देंगे और हीट जनरेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, तो जो इंजन के अंदर प्रेशर चेंज है दैट विल आल्सो बी वेरी फास्ट. और उस केस में जो पिस्टन है दैट इज नॉट सो हार्ड और सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन बी अ चेंज इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. Higher is the rate of change of pressure, higher will be the force, higher will be the momentum, higher will be the temperature due to high heat generation, and this will be broken. तो वो टूट जाएगा वो. तो अब now is there any question? आवाज नहीं आ रही आपकी, दोबारा बताएंगे क्या कहना चाह रहे हैं, मैं सुन नहीं पाया. Any question?